हमारी क्लास को। एंड और कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर करिए, या फिर हम क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें, ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम भी क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। कल से हम प्रेयर भी करेंगे। कल से हमारी दूसरी लिंक रहेगी अनलिमिटेड टाइम की। तो कल से हम प्रेयर कर ही क्लास करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अमृता जी, आर यू देयर? Yes, yes. Yes, please. Thank you so much for joining this beautiful class, and thank you so much for your wonderful, beautiful reading. Please. Yes, ma'am. What are your dreams? Many of the magical practices are designed. अमृत, थोड़ा सा What is it, Sabaji? थोड़ा सा उसका साइज बड़ा करिए जरा। Size बड़ा करना उसका. उसका Okay. जी जी। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through very detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific as and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better ओके, job or your dream job, then think about everything you want the job to be. हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो देखिए, हम लोग को तो ड्रीम लिखेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ड्रीम का क्या लिखना है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि कैसे मिलेगा, उस पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है। हाउ, इफ यू आर द पर्सन, आपका, आप लॉजिकली थिंकिंग करते हो, लॉजिकली आपको रिजल्ट चाहिए, डजेंट मैटर। यहाँ पे आप मैजिक बुक की जर्नी में आपको हाउ क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। इफ यू आर आस्किंग हाउ टू आई गेट माई जॉब, हाउ टू गेट माई ड्रीम हाउस, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो समझ जाइए आप मैजिक पे बिलीव करने वाले नहीं है। पहले लिख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपका हाउ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपीज नहीं है, मैं वो कोर्स करना चाहती हूँ, 10,000 रुपीज नहीं है, बच्चे की फीस बनना चाहती हूँ, देन वहां पे रोक दीजिए एंड बोलिए अपने आप को, मैं आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ मैजिक तो वही बुक। ना। मैजिक बुक पे बिलीव करने वाले इंसान नहीं हूँ। आ तो गई हूँ इस जर्नी में, बट मैं बिलीव कर नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाउ क्वेश्चन आ गया तो आप मैजिक पे बिलीव करने वाले नहीं। यहाँ पे अपने आप को जिस भी तरह, कैसे भी अपने आप को लेकर आइए, किसी भी तरह अपना फेथ बनाइए। जब तक नहीं बनेगा आपका फेथ, जब तक आप 28 डेज की जर्नी में कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे। सुनना चले जाना अलग बात है, लेकिन भाई प्रैक्टिस करना वो अलग बात है। जी अमृता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड पढ़िए। Yes. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health
or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be specific as possible. I would strongly urge you to find the I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. ओके, थैंक यू सो मच अमृता जी, बहुत ब्यूटीफुल्ली पढ़ा आपने। एंड ये लगा दीजिए आप जो डिजायर्स की जो लिस्ट है यहाँ पर, आपके ड्रीम्स, हाँ वहां से हेल्थ एंड बॉडी से। यस, तो यहाँ से हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, आपको सब कुछ बाय प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर हम एक एक बात एक पूरे पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको पूरा जो पैराग्राफ जो चैप्टर बताया पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। फर्स्ट लिखिए हेल्थ एंड बॉडी, आपके ड्रीम्स लिखिए पहले। व्हाट आर माय ड्रीम्स, और व्हाट इज माय ड्रीम, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। मेरा ड्रीम क्या है हिंदी में लिख लीजिए। एंड फर्स्ट लिखिए हेल्थ एंड बॉडी, फर्स्ट हेडिंग डालिए हेल्थ एंड बॉडी। एंड लिखिए हेल्थ और बॉडी में आपको क्या चाहिए पहले डालिए। आपको आप देखिए आपको इस हफ्ते क्या चाहिए, या इस मंथ क्या चाहिए, या 1 ईयर में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मुझे इस मंथ एंड इस महीना या एक साल मिलाकर मुझे क्या चाहिए, मुझे परफेक्ट बॉडी वेट, मेरा सिर्फ एक एरिया में ब्रेकडाउन मैंने लिखा कल, एंड वो है बॉडी वेट मुझे 50 kg चाहिए। तो मैं उसके लिए लिखूंगी 50 kg बॉडी वेट। यहाँ पे फॉर्मेट कुछ नहीं बताया गया है, हमको कुछ फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है। थैंक यू हम इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि फॉर्मेट नहीं है हमारे पास, कुछ आगे आएगा फॉर्मेट तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हेल्थ एंड बॉडी में मेरा एक ही डिजायर है, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म भी वही है, शॉर्ट टर्म भी वही है, अभी भी वही है, 1 वीक के लिए भी वही है, एक ही है मेरा कि आई वॉन्ट द परफेक्ट बॉडी वेट 50 kg। थैंक यू फॉर माई, आपका देखिए, आपका हो सकता है हार्ट का, हो सकता है आपका बालों का, हो सकता है आपका स्किन का, हो सकता है आपका आई साइट का, हो सकता है एनीथिंग अबाउट दैट। आपका मेंटल हो सकता है, मेंटल इसमें है ना अलग से, हाँ मटेरियल चीज नहीं है तो आप मेंटल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया है तो आप मेंटल लिख सकते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो वो भी लिख ले सकते हैं आप, एनीथिंग डेट। तो वहां पे लिखिए थैंक यू, मैं मेरा बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप आपका कनेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर माई perfect body weight 50 kg, because कैसे होगा ये सोचना नहीं है आपको, डाइट में को ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्या खाना कम कर दूं मैं, कौन से जिम को जाऊं, कौन सा एक्सरसाइज करूं, इसके लिए मैं किस ट्रेनर को पकड़ूं, या फिर मैं कौन सा अपना डाइट को चेंज कर दूं, या फिर एक टाइम ही खाना खाऊं, 2 टाइम को नेग्लेक्ट कर दूं, ये सब कुछ सोचना मेरा काम नहीं है। आगे ये बुक्स हमको चैप्टर के थ्रू बताएगी कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको हमारा ड्रीम लिख लेना है। ड्रीम में क्या क्या चीजें होंगी, कैसा लगेंगे हम, वो सब इन्वॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिखते जाइए, मैं जैसा जैसा बता रही हूँ। अगर आपका भी कोई चार्ट में लिख दीजिए, आपका भी ड्रीम है तो हम वो लेकर आगे के उसमें करेंगे, करियर एंड वर्क, मनी में
आपका भी लिख दीजिए, एंड कुछ आपको डाउट्स भी आ रहे हैं तो चैट में लिखिए, उसको भी क्लैरिफाई करते करते आगे जाएंगे। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट 50 kg, बिकॉज उसकी वजह से आई एम लुकिंग वेरी गुड, हेल्दी, फ्लेक्सिबल, स्लिम। थैंक यू फॉर माई 50 kg बॉडी, हेल्दी बॉडी वेट, बिकॉज उसकी वजह से मैं न्यू न्यू और स्टाइलिश कपड़े पहन पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माई 50 kg बॉडी वेट, हेल्दी बॉडी वेट, फिफ्टी के जी बॉडी वेट, बिकॉज उसकी वजह से मैं एकदम से फ्लेक्सिबली उठ बैठ पा रही हूँ, भाग पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, कुकिंग कर पा रही हूँ, घंटों कुकिंग कर पा रही हूँ, और वॉकिंग एंड एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में 3 बार थैंक यू लिख दीजिए। एंड अभी आपको क्या करना है, एक आपका विजन ड्रॉ कीजिए, मतलब कि आप, जैसा कि मैं अब मेरा 50 kg लिखी हूँ तो मैं अपने आप को ड्रॉ करूंगी। एनीथिंग जैसा भी आता है, कार्टून जैसा, जैसा भी कैसा भी आएगा आपको वैसा ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपका आई साइड है तो आई साइड का ड्रॉ कर लीजिए कि कितना रहता है, 60 रहता है शायद ना, 60/60 आई साइड, तो वो लिख लीजिए आंखें ड्रॉ 6 कर by कर। 6. 6/6, सॉरी, हाँ 6/6, वो लिख लीजिए। थैंक यू फॉर माई गुड एंड हेल्दी आई साइट 6/6 बोलकर इस तरह लिख लीजिए। मैं लिख लूंगी, यहाँ पे ड्रॉ कर ले रही हूँ मैं अपने आप को। थैंक यू, मेरा नाम लिख लेती हूँ पहले, सबा नौशी मिर्जा, एंड उसके बाद लिखती हूँ थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखिए एक साइड पर, जहां पे आपने पिक्चर ड्रॉ की है, एंड नीचे लिखिए थैंक यू फॉर माई हेल्दी एंड एक्टिव बॉडी वेट 50 kg। आपका देखिए, आपका जो भी आपने लिखा उसके लिए लिखिए आप। थैंक यू फॉर माई हेल्दी एंड ब्लैक बोन्स लॉन्ग हेयर, इस तरह लिख सकती है अगर आपका हेयर का है तो। आपका स्किन का लिखा है तो थैंक यू फॉर माई हेल्दी एंड क्या ग्लोइंग एंड चमकदार मेरी स्किन, इस तरह लिख सकते हैं। जी, आपका ये हेल्थ का हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, करियर एंड वर्क। यहाँ पे कुछ चार्ट में लिखा है, मैं देख लेती हूँ। चार्ट में करियर एंड वर्क से रिलेटेड लिखा है क्या? थैंक यू फॉर माई ऑस्ट्रेलिया प्योर वेल सेटल हैंडसम अमाउंट रिच लविंग केयरिंग लाइफ पार्टनर। थैंक यू फॉर महादेव जी, क्योंकि मेरी शादी 2026 में हो गई है, ये तो रिलेशनशिप में है। एंड ये पीआर का
ट्रैवलिंग में आ गया, या ट्रैवलिंग में है क्या आपका दूसरी कंट्री का रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स। हम्म आपका करियर का नहीं लिखा किसी ने। हम्म करियर में देखिए, आपको करियर में क्या हो सकता है, आप देखिए, आप करियर में हो सकता है कि आप बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर, मतलब कि ब्यूटिशियन का कोर्स करके हो ब्यूटी पार्लर डालना चाहते हो, या कहीं पर आपको जॉब चाहिए, या फिर कहीं पर आपको मतलब आप ही बॉस हो, आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो या फिर आप कहीं पर अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, आप सिंगर हो, डांसर हो, एनीथिंग अबाउट दैट, उसके बारे में है तो बताइए, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। माइग्रेन के बारे में कैसे लिखे, माइग्रेन के बारे में आपको लिखना है, थैंक यू फॉर माई हेल्दी एंड एक्टिव, हेल्दी एंड एक्टिव नहीं आता, थैंक यू फॉर माई मेंटल, आपको मेंटली इसमें आता है, मेंटल उसमें आता है, तो आपको किस तरह से लिख सकते हैं माइग्रेन का, थैंक यू सो मच फॉर माई मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में आता है, तो ये आपका मेंटल हेल्थ जब आपका डिस्टर्ब होती है तभी माइग्रेन स्टार्ट होता है, तभी वो फिजिकल फॉर्म में आता है, तभी आपके सर दर्द होता है। थैंक यू सो मच फॉर माई पीस ऑफ माइंड, आई एम वेरी काम, ये आपका फॉर्मेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर माई पीसफुल माइंड, आई एम वेरी काम, आई एम ऑलवेज काम, ये आपकी फॉर्मेशन होगी। जी हाँ, करियर में देखिए, अब करियर में यहाँ पर किसी का नहीं आया है, तो मैं करियर का मेरी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर आपका करियर का कोई है तो लिख दीजिए, हम वो एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं तो मैं मेरा लिखती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। करियर में यहाँ पे चाहिए मुझे कि यस, मेरा कुकिंग चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो मैं लिखूंगी माई कुकिंग चैनल मोनेटाइज इन दिस ईयर एंड आई एम गेटिंग मंथली इनकम। Sabaji, are we writing in the format of thank you, thank you, thank you? खाली एक बार थैंक यू लिख रहे हैं, हमको फॉर्मेट नहीं आया है यहाँ पर, तो वी हाँ, आर नॉट यूजिंग द फॉर्मेट एनीथिंग, खाली एक बार हम, क्योंकि पता है ना हमको, ओके। तो इसलिए हो जा रहा है, यूज टू में आ जा रहा है वो थैंक यू, ओके। अदरवाइज नहीं भी तो चलेगा। ओके। हाँ जी, तो आपका करियर का देख लीजिए, आप लोग को कहाँ पे जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, जो भी आपका रिलेटेड है वो लिख लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो मैं उसी पे करा दूंगी, बट एग्जाम्पल देर इज नो एग्जाम्पल, तो मैं अपना ही ले रही हूँ। थैंक यू जैसे फॉर मैम मैं मैंने योगा भी क्लास सेंड करती किया। हूँ तो किसका, मैं एक योगा क्लास मिनट करती हूँ तो लिखिए, थैंक यू, आपके योगा क्लास में क्या चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए ना। हाँ। हाँ, तो लिखिए कितने क्लाइंट्स चाहिए आपको, 50 चाहिए, 100 चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर माई 100 क्लाइंट्स, थैंक यू सो मच फॉर माई योगा क्लास में 10 आ रही हैं, इतनी फीस भी लिख दीजिए वहां पे, एक एक जना कितना फीस पे कर आ रहा है, उसके हिसाब से डालिए कि आपकी मंथली इनकम इतनी और हो रही है। न्यूमरोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए हाँ, उसके लिए भी वही लिखिए, उसके लिए भी क्लाइंट्स ही चाहिए ना। हम्म, हाँ, तो उनके भी लिखिए, क्लाइंट्स आ रहे हैं, इतना इतना फीस पे कर आ रहे मैम हैं। जी, बताइए। मैम मैंने भी दो बिजनेस करती हूँ, सैलून की होम सर्विस देती हूँ और हम्म ओरिफ्लेम का काम करती हूँ, और मुझे हीलर भी बनना है मैम, तो उसके लिए थोड़ा सा। हाँ, आप सैलून की होम सर्विस देते हो, तो उसके लिए लिखिए कि आपको कॉल्स आ रहे हैं, और हर एक जगह से जो भी कॉल कर रहा है आपको, आपका अमाउंट डालिए, आपको कितने उस पे बुलाया जाए, जैसा 10,000 ओके। एक आपका फिगर है, तो आपको बोलिए कि थैंक यू सो मच, मुझे इस वीक पे कितने क्लाइंट्स आए, मतलब कितनों ने आपको ऑफर किया, 2 या 3 लोगों ने 10,000 पर मुझे ऑफर किया है, और मैं उनको जाकर घर पर अच्छी से सर्विस दे रही हूँ, और उन लोगों ने बहुत हैप्पी हैप्पी मुझे 10,000 रुपीज बहुत अच्छे से पे किया है। तो मैम इसका जैसे वीकली लिखा, फिर हमने मंथली लिखना है, फिर हमने ईयरली लिखना है। हाँ, मंथली लिखना है, फिर ईयरली लिखना है, जैसा कि इस वीक का आपका हो ठीक गया है। ना 3 क्लाइंट, मंथली कितने आएंगे, 10, हम्म। फिर ईयर में 100 आ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। एंड आ गया सबको। यस, थैंक यू सो मच फॉर माई सबा रसोई घर चैनल मोनेटाइज इन दिस वीक, थैंक यू सो मच
फॉर माई कुकिंग चैनल monetize and started getting money from September month डैश अमाउंट जितना भी मुझे चाहिए पर मंथ एंड मुझे पूरे साल की इनकम अपने कुकिंग चैनल से डैश इतनी हुई है। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने सारे सब्सक्राइबर का और यूट्यूब का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, नीचे आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसा कि किसी ने योगा क्लास बताई, तो योगा में आप खड़े हो, आपका नाम लिख लीजिए कार्टून, और आप पूरे स्टूडेंट खड़े करें छोटे छोटे कार्टून के जैसा, इस तरह से। अभी और किसी ने पूछा ना कि घर पे दे रहे हैं, तो उनका घर पे देखिए, वो सोफे पे बैठे, आप सोफे पे बैठे, जो भी आप सर्विस कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस तरह ड्रॉ कर लीजिए। जैसा मैं अपना चैनल का ही लोगो ड्रॉ कर लेती हूँ। एंड साथ में डिशेस, बिरयानी, केक, समोसा। वाव वाव वाव। यूट्यूब चैनल नेम सबा रसोई घर। बाजुक लिख दीजिए 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाजुक नीचे कहीं पर भी लिख दीजिए 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड लास्ट में लिखिए, लास्ट लाइन लिखिए, थैंक यू फॉर माई यूट्यूब चैनल सबा रसोई घर मोनेटाइज एंड आई एम गेटिंग मंथली अर्निंग। मंथली मनी, मनी लिख देती हूँ मैं, अर्निंग मतलब क्या आएगा, अर्निंग में तो बहुत आ जाएगा, रिस्पेक्ट, लव। यस, तो इस तरह से आपको मनी बोलकर वहां पे डालिए। सैलरी वही मत डालिए, अमाउंट डालिए, मनी डालिए। उसके बाद बाजू लिखिए कि आपको मंथ में कितना मिल रहा है। हो सकता है 50,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, वो अमाउंट भी डाल दीजिए। यस। एंड नेक्स्ट है आपका मनी, ओनली मनी। तो देखिए मनी से आपको क्या चाहिए। किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को एनीथिंग, मनी से जो चीज चाहिए उस वो देखना है हमको। किसी को एसी चाहिए, किसी को मतलब कि फ्रिज चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए आपको। मनी से आपको ऑफिस बनाना है, आपको घर बनाना है, आपको कार लेना है, आपको फीस बनना है, किसी का मतलब किसी आपने एंजल से लिया था पैसे, उनको रिटर्न करना है, तो वो मनी के लिए। मनी डाल लीजिए कितना अमाउंट है आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल लेती हूँ 10 लाख रुपीस। एंड 2 लाख का मैं लैपटॉप डाल लेती हूँ। Sabha ji, मैम can ये you repeat मंथली that? डाल रहे हो? यस। Can you repeat that, हाँ Sabha ji? जी जी। मैम ये मंथली है? नहीं नहीं, मंथली नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप ना ये डालिए, आपको जो जो चीजें चाहिए
वो डालिए। उसके बाद हम मंथली लिखेंगे कि आपको क्या क्या होना, ओके। कैसे आपको उसका यूज करते हैं। पहले खाली डाल लीजिए आपका राउंड फिगर 1 लाख है, 10,000 है, या बच्चे की फीस है पूरे साल भर की, तो इस तरह से डाल लीजिए। रेंट देना है तो रेंट का डालिए। सबा जी जी। अमृता जी। हाँ, जी। सो हमने ये करियर का लिखा है अभी, हम्म। और उसके बाद आई राइट व्हाट ऑल आई वांट, इज इट, मतलब साल भर का। हाँ, साल भर का आपको, जैसा कि आपका करियर में आपने जॉब मैनिफेस्ट किया है, आपको मंथली कितना आएगी, फिर उसका साल भर का कितना आएगा, बोनस वो ये सब कुछ मिलाकर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी दिवाली पे इसका इसका सबका मिल जाता है ना, तो सबका राउंड फिगर डालिए। जैसे आपका 30 लैक्स हो गया राउंड फिगर, तो वो डाल दीजिए। सब बोनस वो सब मिलाकर आपको एक्स्ट्रा मिल गए, सब मिल गए, यहाँ से वहां से गिफ्ट के तौर पर मिल गए, सब मिलाकर डाल लीजिए। कि आपके ट्रैवलिंग के लिए दिया गया, आपको घूमने के लिए 3 छुट्टियों के लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कीजिए, वो मिला के आपको 50 लैक्स हो रहा, 30 लैक्स हो रहा, वो डाल दीजिए। ईयर में इतना हो गया मेरा। ओके। जी। मनी में लिखिए 2 लाख रुपीज, जैसे मैंने लिखा लैपटॉप। देन उसके बाद मुझे, हाँ, 5 लाख रुपीज कार, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं। ये सब कुछ कितना हो गया, 6 7 हो गया। एंड उसके बाद हो गया मेरे को, अभी क्या चाहिए, लैपटॉप वो, हाँ, अभी मंथ के लिए मुझे चाहिए टीवी, तो मैं टीवी डाल लेती हूँ। नेक्स्ट मंथ अगर फॉर एग्जांपल टीवी हो गया। एंड यल शेप सोफा, यल शेप सोफा, इसका अमाउंट, टीवी का अमाउंट 1 लाख डाल लेती हूँ मैं। सोफे का डाल लेती हूँ मैं 50,000। मैम अगर किसी को पे करने हैं तो कैसे लिखेंगे? उनका पे डाल दीजिए खाली। आपको जो एंजल है ना, तो हाँ एंजल जी, का हाँ जी। पेमेंट, पेमेंट बोलकर, जैसे एंजल का पेमेंट 5 लाख रुपीज आपको पे करना है। 5 लाख रुपीज उनका आई नाम पे लिखना टू है। मैं, हाँ, उनका नाम लिखना है आपको। एंजल और लिखकर उनका अगर नाम और लिख दीजिए। ठीक है, और हम्म। होम लोन का पे करना है तो? वो भी लिखिए, होम लोन का भी लिखिए। नीचे लिखिए आई पेड द होम लोन, जितना भी आपका 10 लाख रुपीज है तो लिख दीजिए 10 लाख रुपीज। ठीक। हम्म। एंड 2 लाख रुपीज मैंने अपने क्रॉकरीज खरीद ली किचन के लिए, चैनल पे बताने के लिए। हो गया ये, कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10। हाँ, 50,000 का सोफा, 50,000 का मैं और डालूंगी कि क्या, छोटे मोटे चीजा जैसे हो जाते हैं, चेयर वो ये डेकोरेशन का सामान, हाँ, 50,000 डेकोरेशन। ये मिला के हो गया मेरा 10 लाख रुपीज का। हाँ, अब आप उसको डिवाइड करना है। अब आपको देखना है कि अब मैंने 50,000 डेकोरेशन में डाला, तो अब मैं 50,000 में अब देख सकती हूँ वीक में कितना खर्च कर सकती हूँ। वीक में हो सकता है कि मैं जाकर ले सकती हूँ अब, जैसा कि डेकोरेशन जैसा इसमें आ गया, मैं जाकर लूंगी कि अपने उसके लिए, डेकोरेशन के लिए जाकर पॉट्स खरीदूंगी, या फिर सीनरीज खरीदूंगी जाकर, या फिर मुझे जो जो चीजें अच्छी लगती है, जो घर में लगाने के लिए अच्छी दिखेगी मुझे, जैसा कि एग्जाम्पल हो गया पेंटिंग अच्छी दिख रही है, तो मैं पेंटिंग ला लूंगी जाकर। और तो ये हो गया मेरा, वीक में जाकर मैं अपना अमाउंट डाल लूंगी 50,000 रुपीज। थैंक यू फॉर 50,000 रुपीज। बिकॉज उससे मैं इस वीक अपने घर के डेकोरेशन के लिए सामान लेकर आ पाई हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका मंथ। वीक में आप डाल लीजिए, आपको वीक में और क्या क्या लगता है कि आपको लेकर आने की जरूरत हो सकता है, क्या राशन का सामान हो, आपका किचन का सामान हो, वो भी हो सकता है। इस वीक में हो सकता है आपको किसी डॉक्टर के पास है, उनके पैसे देना है, तो आप वो भी डाल लीजिए। इतना पैसे अमाउंट में से इतना पैसा दे रही हूँ मैं। जैसे आपने राउंड फिगर डाला 10 लाख रुपए, तो डॉक्टर को आपको बताने गए 10,000 रुपीज, इस तरह से डाल लीजिए। एंड मंथ में देखिए, मंथ में मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, टीवी ले सकती हूँ, सोफा ले सकती हूँ,
तो थैंक यू सो मच फॉर 2 लाख रुपीज, बिकॉज उससे मैं सितंबर मंथ में सोफा, टीवी, फ्रिज, डबल डोर फ्रिज ले पाई हूँ। अब देखिए ये मंथ में कंप्लीट, आपका वीक में कंप्लीट नहीं होगा तो अब वीक का मंथ में कर देना ट्रांसफर। मंथ का नहीं होगा, मंथ का नेक्स्ट मंथ कर देना। नेक्स्ट मंथ का नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ करना। आप ईयर पे डाल देना वो। नेक्स्ट मंथ का भी नहीं होगा, देन ईयर में उसको इन्वॉल्व कर देना। अब ईयर का हो गया मेरा, ईयर का आएगा कि 1 ईयर में, ये ईयर के खत्म होने से पहले मुझे लैपटॉप चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ थैंक यू सो मच फॉर 2 लाख रुपीज, बिकॉज उसकी वजह से मैं 2026 में अपना आईपैड ले पाई हूँ, मैकबुक ले पाई हूँ, सॉरी। जो भी आपके वीक के नहीं हो गए आप उसको नेक्स्ट मंथ में कर देना। नेक्स्ट मंथ में नहीं हो गए आपको नेक्स्ट मंथ करना। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर देना उसको। हाँ जी, दीपा जी आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड बताइए। दीपमाला जी, सुधा जी, गुड मॉर्निंग। पैसा देना आफ्टर है बहुत। गुड मॉर्निंग मैम। यस, बहुत खुशी हमें हुई किसी आपको का देखकर। पैसा सेम ईयर मैम। हाँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। दीपा जी बताइए क्या क्वेश्चन है? जी मैम, मैं कह रही थी कि किसी का पैसा लौटाना है, बहुत कर्जे में है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन लिखें? हाँ अभी बताया ना, थैंक यू सो मच फॉर द पेमेंट। कितना आपका अमाउंट है? आपका हो सकता है कि 50 लाख रुपीज देने का है, उनका नाम लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर द मनी 50 लाख रुपीज आई पेड टू, उनका नाम लिखिए। जो इंसान है जी। जिनका, फॉर एग्जाम्पल जिन उनका नाम सीता है तो सीता लिख दीजिए। फॉर जी मैम। एंड सीता, इस तरह से आप लिखिए। हाँ, जी। आप कब तक देंगे वो भी डाल लीजिए। ये 1 मंथ में हो जाएगा, 3 मंथ्स में होगा, या 1 ईयर के, ये ईयर खत्म होने से पहले आप दे देंगे तो 1 ईयर का डाल लीजिए। या 1 वीक में हो जी। जाएगा तो ये पहले 1 वीक में नहीं होगा 1 मंथ में डालिए, 1 मंथ में नहीं होगा 1 ईयर का बना दीजिए उसको। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। हाँ, नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में बताइए किसी का, लिखकर चैट में किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है। कल आपने लिखा ना ब्रेकडाउन, जिस जिस एरिया में, कल आप लोगों ने लिस्ट बनाई ना, उसमें से बताइए ना। कोई नहीं बता रहे हैं। कल मैंने इसीलिए बताया कि आपको ब्रेकडाउन सास लिख के लेना है। साथ, सास के साथ बेफिक्र बिंदास। मतलब मैं इतने जो बोलूं उनको बात समझना चाहिए, मतलब एक बैठ बाउंडिंग बैठना चाहिए, वही नहीं बैठती है। ओके राइट, ओके राइट। तो लिख लेते हैं, वहां पे लिखिए आप थैंक यू सो मच फॉर माय सासू माँ, बिकॉज आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप लोग हस्बैंड को या बच्चों को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा बताया गया है, चंदू जी ने बताया कि सास बताया, लेकिन आप लोग, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके भाई बहन, कुछ उनका लेकर सेम यही आएगा, फॉर्मेट सेम यही रहेगा। बहुत, कहाँ पे लिखे, मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम दोनों में बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट है, और हम लोग हर वीकेंड पर साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, और वो मेरी पसंद की चीजें
और मैं उनकी पसंद की चीजें लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी किसी ने मैरिज का भी लिखा था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए थैंक यू सो मच फॉर आई गॉट मैरिड टू माई लवली, या फिर रिस्पेक्टफुल हस्बैंड। इस तरह से अफर्मेशन लिखिए, बाकी सब यही लिखिए, सब कुछ यही आएगा। अभी किसी ने मैसेज किया था कि उनको शादी करनी है, पार्टनर चाहिए, तो वहां पर लिख देना, आपकी अफर्मेशन फर्स्ट आएगी थैंक यू सो मच फॉर माई लवली रिस्पेक्टफुल केयरिंग हस्बैंड, ये एक अफर्मेशन आएगी। उसके बाद सेम फॉर्मेट यही आएगा। हाँ, मेरी पसंद की चीजें लेते हैं और मैं उनकी पसंद की चीजें लेती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर, हम लोग एवरी मंथ घूमने के लिए बाहर जाते हैं और फुल्ली इंजॉय करते हैं। और घर पर एवरी मंथ पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू सासू माँ, बिकॉज ऑफ यू मुझे हर महीने सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है, जहाँ पर मैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, लव्ड वंस, जो जो भी है आपके, सबके साथ मिलकर एंजॉय कर कर और उनके साथ बहुत मजे करती हूँ। सब थैंक यू। बढ़िया। मुझे मेरे साथ, आप लिख दीजिए कहाँ को भी, हरिद्वार या कहीं पे भी, साल में एक बार हम दोनों साथ में जा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जो भी आपके रिलीजियस पोता प्लेस है। ऊपर है, पोती स्कूल में। सी इज वेरी कोऑपरेटिव। ओके, यस, लिखिए चंदू जी, आप अनम्यूट कर कर बोलिए। एंड हम साल में एक बार सॉफ्ट गोवा, टॉकर। हाँ, सॉफ्ट टॉकर लिखिए, केयरिंग लिखिए, लविंग लिखिए, खाने के लिए पूछते हैं हर दिन, वो लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर, साल में हम एक बार गोवा की ट्रिप पर भी जाकर आए हैं पूरी फैमिली। मेरे सासू माँ ने मुझे वहां पर जाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए और टिकट्स के लिए बहुत सारा गिफ्ट के तौर पर 2 लाख रुपीस दिए हैं। उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में 3 बार थैंक यू लिख दीजिए एंड ड्रॉ कीजिए अब नीचे। जैसे आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड का, बच्चे है तो बच्चों का, आप और उनके साथ 2 लोगों की रहना जरूरी है फोटो, कैसा भी ड्रॉ कीजिए। एंड नाम लिखना जरूरी है वहां पे, नाम अच्छे से लिखिए।
सासू माँ मैनिफेस्ट हो रही है मेरे यहाँ पे चंदू जी की वजह से। उनके आने से पहले से तारीफें हो रही है यहाँ पे लिख लिख कर। यस, एंड देखिए वो मैम आपको गले लगा मनी में हमने हाँ, ड्रॉ नहीं किया ना कुछ, मनी में कहाँ? ड्रॉ, मनी मनी में, में नहीं मनी किया? एरिया। अच्छा अच्छा, नहीं किया है ना? हाँ कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। यस, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। कैसे भी ड्रॉ कीजिए, यहाँ के कोई फॉर्मेट नहीं है, हमको ड्रॉ करने का विजन बोर्ड अभी आया नहीं हमारा, तो हम किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपका नाम लिख लीजिए वहां पर। गले लगा रही है वो आपको, आपके साथ खड़े हुए है, आपके गले में हाथ डाले हुए हैं, एनीथिंग दैट। एंड 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जूम का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ लास्ट तक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं लवली, केयरिंग, हेल्दी, ब्यूटीफुल, जॉयफुल सासू माँ, आप मुझे बहुत बहुत पसंद हो। आई लव यू, आई लव यू माई सासू माँ। यस, नीचे लिख देना है आपको इस तरह से। एंड ये हो गया आपका विजन बोर्ड। कुछ सही गलत नहीं है, जैसा ड्रॉ करना है वैसा ड्रॉ कीजिए, सिर्फ नाम लिख दीजिए वहां पे, पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर नाम लिख दीजिए, वो कर दीजिए। हाँ, मनी में ड्रॉ कीजिए, आपको 1 लाख रुपीज चाहिए तो नोट्स, एक नोट एंड गांधी जी की फोटो, गांधी जी की फोटो एक, एंड वहां पे 500 के नोट, 500 रुपीज, 500 के एक एक गड्डी रहती है ना, उस तरह से ड्रॉ कीजिए 1 लाख की। 1 1 लाख की, इस तरह से 1 लाख बंडल, और एक 1 लाख बंडल, ऐसे 10 बंडल मैं ड्रॉ करूंगी। आप लोग भी देखिए कितना लिखे हो, उस तरह से ड्रॉ कीजिए। एक 500 के नोट ऊपर डाल दीजिए और नीचे लिख दीजिए 1 लाख बंडल बोलकर। जैसा गांधी जी की फोटो रहती है, 500 रुपए लिख कर रहते हैं, और वो डिफरेंट लैंग्वेज रहते हैं ना, खाली ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज को खाली ऐसे इस तरह से डॉट डॉट डाल के छोड़ दीजिए। एंड उसके नीचे लिखिए 1 लाख बंडल। आपने जितना लिखा है, अगर 20 लाख लिखा है तो 20 ड्रॉ कीजिए, 5 लिखा है तो 5 ड्रॉ कीजिए, 10 लिखा है तो 10 ड्रॉ कीजिए, 2 लिखा है तो 2 ड्रॉ कीजिए, नीचे लिख दीजिए 1 लाख बंडल बोलकर। हाँ जी, तो ये मनी का हो गया। यस, रिलेशनशिप का भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हाँ, अभी पर्सनल, यस, अभी पर्सनल डिजायर्स में देखिए, आपका पर्सनल डिजायर्स क्या हो सकता है, आपका खुद का, मतलब पर्सनल डिजायर जैसा कि हो सकता है, आपका पर्सनल डिजायर है आपका कि मुझे गोल्ड का नेकलेस चाहिए, 3 तोले का। आपका पर्सनल डिजायर हो सकता है कि, यस चंदू जी बहुत एक्साइटेड गोल्ड सुनते। आपका पर्सनल डिजायर हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट दे दे 1 लाख रुपीज। आपका पर्सनल डिजायर हो सकता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए। आपका पर्सनल डिजायर हो सकता है कि आपकी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, आपको या फिर आपके बेटे को बच्चा हो जाए, बेटी को बच्चा हो जाए, एनीथिंग दैट पर्सनल डिजायर आपका पर्सनल डिजायर है, तो उसके लिए लिखिए पर्सनल डिजायर।
हम्म मटेरियल थिंग्स, लास्ट मटेरियल थिंग्स है। हाँ, पर्सनल डिजाइन में लिखिए आपको क्या चीज चाहिए आपको। जैसा हम गोल्ड का ले लेते हैं, किसी का है क्या पर्सनल डिजाइन, यहाँ पर चार्ट पे लिख दीजिए, अगर अच्छा लगा तो हम ले लेंगे, उसी को करेंगे। एनी वन। पर्सनल डिजाइन में कुछ भी आ सकता है, कार भी आ सकती है, या फिर आपका हो सकता है फ्रेंडशिप चाहिए, आपको फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई साड़ी गिफ्ट करे, आपका है तो कोई साड़ी गिफ्ट कर सकता है। हो सकता है आप चाहते हो कि कोई आपको शादी में बुलाए, उनकी अनबन है उनके आपके साथ, आप चाहते हो कि वो उनके बच्चों की शादी में बुलाए। एनीथिंग अबाउट इट। बेटी की मैरिज, मैरिज का तो हमने अभी लिखा है ना। एंड और एक क्या लिखा है? अ, साबाजी, और जी ओके, ऑफिस ओपन करना, हाँ जी बताइए। रियली एंजॉयिंग व्हाट यू मेकिंग अस डू। मैं पहली बार ड्राइंग्स कर रही हूँ। लास्ट ईयर से आई एम इन दिस जर्नी, बट रियली एंजॉयिंग। मैंने कितने ड्राइंग्स किए। थैंक यू, वाह, साथ में असाइनमेंट्स करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमृता जी। सबकी नजरों में अच्छी इमेज बन जाए, ये किसने लिखा? जूम यूजर कौन है? ये जूम यूजर प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए आप किसको लिखते करते हैं। हाँ, ये जूम यूजर कौन है ना? लास्ट आप अनम्यूट कीजिए। जी जी बताइए। सबकी नजरों में अच्छी इमेज बन जाए मतलब क्या बनना है आपको? मतलब लोग जैसे मैम, क्या कहे? जैसे कहीं रिश्ते की बात चलती है ना, तो कोई पूछता है कि लड़की के बारे में, तो कई बार मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आई है ना, कि मैम जज करते हैं कि अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टर वाइज जज कर देते हैं। तो मतलब मैंने अपने अंदर अच्छा। बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं मैम। हम्म तो हमारी किस किस पास्ट वे की में बोल गलतियों की सकते वजह से, पास्ट की गलतियों को लेकर ना अभी तक हमें लोग जज कर देते हैं। लेकिन अब हम वो हैं? नहीं रहे, तो हम्म हमें वो ऐसे कोई जज ना करे, सब अच्छा बोले। ये मतलब डिजायर है मैम मेन। हम्म तो आपको किस चीज पे जज करते हैं? आपके लुक्स पे करते हैं? आपके किस चीज पे जज करते हैं पास को लेकर? कई बार जैसे मतलब मैम, कई रिश्ते आते तो हाइट की जैसे भी जज कर देते हैं कि हाइट कम है, और बाकी हम्म ऐसे बोलते कि लड़की ठीक नहीं है, करेक्टर वाइज ऐसे बोल देते हैं मैम। तो उनको नहीं आप पता ये कि मैम बताइए। हमने अपने अंदर, जैसे लोगों को नहीं पता कि हमने अंदर अपने अंदर क्या चेंज किए हैं, अब हम कैसे हम्म, बन गए हैं, पहले कैसे थे। तो देखने से ही ऐसे जज कर लेते हैं लोग। जी जी ओके। ये दीपमाला जी कहीं मेरी फ्रेंड आरती तो नहीं है? सेम वैसी दिख रही है आपको ना? एक बार मुझे अनम्यूट करके आप फेस कैमरा ऑन करके बताइए। मेरी फ्रेंड सेम आपकी जैसी दिख रही है। उसका नाम आरती है। हाँ, तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है? जूम यूजर अलका। अलका, हाँ जी अलका जी, अलका। ये बताइए आप ये जर्नी में कब से हो? हाँ जी। जी जी अलका जी बताइए, ये जर्नी में कब से हो आप? वैसे तो ना मैं, ये 1 साल हो गया मुझे, 1 साल से भी ज्यादा हो गया अब तो। अच्छा, मैजिक बुक कितने बार किए हो आप? वैसे तो कई बार किया है, लेकिन मेरी हर बार ना कंप्लीट होने से रह जाती थी, कंप्लीट नहीं कर पाती थी मैं। कंप्लीट नहीं रह लेकिन पाती? मैं और ग्रेटिट्यूड बहुत अपने करती हूँ, मतलब काफी चेंज आया है मेरे में। पहले ना मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी अपने पास्ट की गलतियों को लेकर, तो मेरी ना वो ओवर थिंकिंग काफी कम हुई है। मैं उठते ही बहुत टेंशन लेने लग जाती थी, माइंड में पता नहीं क्या क्या था। तो उन चीजों में काफी चेंज हुआ है। गुस्सा बहुत आता था, गुस्से में काफी कंट्रोल हुआ है। बिना बात लड़ती थी दूसरों के साथ, गुस्सा कर देती थी, उसमें भी काफी चेंज हुआ है। मतलब फर्क बहुत पड़ा है, लेकिन फिर भी ना कहीं ब्लॉकेज अभी भी है, कि जो मेरी मेन विश है वो ओ, अभी पूरी नहीं हुई है, शादी वाली, ड्रीम लाइफ पार्टनर वाली। हाँ मतलब रिश्ते आते हैं जो मैं, मतलब बहुत रिश्ते आते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ जैसे लड़के के, वैसे ही रिश्ते आते हैं मेरे लिए, कि मैं ऑस्ट्रेलिया वाला लड़का चाहती हूँ। इतने सारे रिश्ते मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया वाले ही आते हैं, लेकिन बात बनते बनते रह जाती है। देखने भी हाँ आते जी। हैं, और एक तो जहाँ बिल्कुल हाँ भी हो गई थी, वहां पे भी उन्होंने फिर लास्ट में मना कर दिया। पता नहीं क्या ये चल रहा है। हाँ, तो आप क्या करते हो? आप जॉब करते हो? नहीं, मैं अभी तो घर पे ही रहती हूँ। आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी M.Com, B.Com और कंप्यूटर हाँ कोर्स तो रखा है मैंने। आपने की थी?
अभी कहीं पे जॉब की या किसी। रिसेंटली कहीं ना बात चली थी, बिल्कुल उन्होंने ना, मैंने उनके पास फोटो सेंड कर दी, उन्होंने मेरी फोटो देख ली, हाँ कर दी उन्होंने फोटो देख के। तो उन्होंने पूछा, बोला कि हम ना लड़की के बारे में पता करेंगे। तो ना किसी ने ना ऐसे बोल दिया गांव के लड़के ने कि लड़की ठीक नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये बात मेरी वो बहुत नहीं है, मेन वो प्रॉब्लम तो हो रही है मेरे रिश्ते में। सिम्टम्स है, बात वो नहीं है जो आप पकड़ रहे हो, आप उसमें घुस गए हो। बात ये नहीं है, आपने सिर्फ अपने आप पर विश्वास नहीं किया, अपने आप को ही आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरा कहने का ये मतलब है, आपने कहीं पे जॉब की होती, कहीं पे कुछ किया होता तो आपको कॉन्फिडेंट आता, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते। लेकिन आप इस जर्नी में हो, आप मैजिक बुक भी नहीं किया हो रेगुलर बेस पे, 28 डेज बाई प्रैक्टिस करते तो आपको कुछ अलग से अपना इम्प्रूवमेंट दिखता। ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं बोलूंगी मैं, इम्प्रूवमेंट दिखता अपने आप में काफी हद तक। लेकिन आप उसमें भी नहीं हो, आप सिर्फ एक उसमें हो कि मतलब एक चीज के पीछे भाग रहे हो, शादी चेस कर रहे हो, अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। एंड ये आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है। आप ग्रुप में बने हो ना, मेरे ग्रुप में, आप उसमें आइए, मैं आपको, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए, मैं आपको, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी। यहाँ पे हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हाँ मैं और पर्सनली बताऊंगी आपको मेरी प्रॉब्लम क्या हो गया है। आराम ठीक से, है। आराम से। हाँ, ठीक है मैम, मेरे नंबर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पर्सनल डिजाइन हो गया क्या, नहीं लिखे? नहीं लिखे है ना, तो लिखिए पर्सनल डिजाइन में गोल्ड लिख लेते हैं, 3 तोला गोल्ड ही। कुछ नहीं मिला है, आप लोग के पर्सनल डिजाइन कुछ नहीं है दिखता है मुझे। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सब लोग का किसी का कुछ पर्सनल डिजाइन नहीं है, सब लोग मैम दूसरे फैमिली के लिए जी रहे हैं। मैम अमृत वेले उठना चुपती, अमृत अमृत वेले वेले। उठना, हाँ ठीक है, लिख देते हैं 3 AM, 3 AM वेकअप, वेकअप कॉल, 3 बजे उठ। हाँ लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर, आई एम डेली वेकअप इन द मॉर्निंग, 3 AM, और मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे, जो भी आपका है, मेरा 3 बजे है तो मैं 3 बजे डाल दी हूँ, आप 4 बजे 5 बजे कभी भी उठना चाहते हैं वहां लिख सकते हैं। उठकर जब मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती हूँ, प्रैक्टिसेस मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, रिलीजियस वे में, एनीथिंग वहां पे वो डाल लीजिए। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिसेस बोल रही हूँ, वहां पे आप लिख लीजिए, आप पूजा करते हो आप या कुछ और करते हो, जो भी करते हो वो लिख लीजिए। करने से मैं दिन भर बहुत ही एनर्जेटिक एंड हैप्पी फील कर पाती हूँ। थैंक यू कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन में हर दिन रख पाई हूँ, रख पा रही हूँ। और सुबह उठकर प्रैक्टिसेस करने से मेरा माइंड और भी पीसफुल हो गया है। 1 वीक करने से मुझ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है। थैंक यू
कि मैं इसको 1 मंथ पूरी कंसिस्टेंसी के साथ कर पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं हर दिन बहुत खुश रहती हूँ और 1 साल में पूरा घर का माहौल ही चेंज हो गया है। हर एक घर का सदस्य बहुत खुश और हैप्पी। सबा जी, थोड़ा जी स्लो, थोड़ा स्लो। ओके, ये लिख थैंक रहे यू। हो? हाँ, ओके ओके। हाँ, तो क्या लिखा हमने? घर का हर एक सदस्य भी 1 साल के अंदर बहुत हैप्पी एंड खुश हो गया है, बिकॉज ऑफ मेरे सुबह उठकर प्रैक्टिसेस करने की वजह से घर में पॉजिटिव एनर्जी फुल्ली स्प्रेड हो गई है। हर एक घर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में 3 बार थैंक यू लिखिए। हाँ, आप भी लिखिए, आप बेड ड्रॉ कीजिए एंड बेड पर अपने आप को ड्रॉ कीजिए। मतलब जैसे भी आप सोकर उठ रहे हो तो उस तरह की पिक्चर। बेड, बेड, आपका बेड लिखिए वहां पर एंड उसके अंदर लिखिए, आपका नाम लिखिए। उठकर बैठे हो बेड पर एंड बाजू के साइड ही वॉच ड्रॉ कीजिए। वहां पर आप लिखिए टाइम, 3 AM, 4 AM, 5 AM, कुछ भी, जो टाइम आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है। एंड उसके बाजू कैलेंडर ड्रॉ कीजिए। 2026 कैलेंडर का नाम लिख दीजिए ऊपर, दिसंबर मंथ लिखिए एंड लास्ट 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। यस, एंड 38 दिसंबर को आप टिक करिए यस बोलकर कि आपने 2026 में पूरा साल, मतलब अब आने वाले जितने भी दिन है, ये टाइम से ये टाइम पे ही उठे हो। एंड बाजू लिखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार। एंड लास्ट में लिखिए थैंक यू फॉर, थैंक यू के मैं पूरा साल 3 AM को उठकर प्रैक्टिसेस अच्छे से कर पाई हूँ। इसके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। यस, ये हो गया आपका पर्सनल डिजायर। हाँ, लास्ट हमारा है मटेरियल थिंग्स। हाँ जी, मटेरियल चीजों में बताइए, एक चीज बताइए कोई, लास्ट वाला चैट में लिखिए या फिर अनम्यूट कर कर बताइए क्या है आपका मटेरियल चीज। सोफा सेट।
सोफा सेट, यस। तो बताइए कौन सा सोफा सेट चाहिए, कौन से शेप का चाहिए, कितने थाउजेंड का चाहिए, सब कुछ बताइए, कौन से कलर का चाहिए। 50,000 का, क्रीम कलर का, एल शेप में, साथ में दो यस। सीट्स अलग से और टेबल। वो साथ में ही आते हैं ना, यल शेप फुल हाँ सोफा जी। सेट। हाँ जी, कार, सीमा जी ने कार बताया है तो कार कर लेते हैं, कार अच्छी है, सबको कार आ जाएगी। सीमा जी वेट कीजिए, बताइए मुझे कार कौन सी चाहिए, नाम बताइए, कितने की है, सब कुछ बताइए। सीमा जी है क्लास में? वीडियो ऑन कीजिए एंड बताइए आपको। यस। मैम, यस, हाँ जी बताइए कौन सी कार चाहिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, हाँ। यस, आप वीडियो ऑन कर सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हम सोफा ही ले लेते हैं, आपको बाद में लेते हैं हम, और ड्रीम्स में हम बाद में आगे जाकर करेंगे। यल ओके। शेप सोफा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एंड क्रीम कलर, 50,000 रुपीज। नेट नेट नहीं है बराबर। हाँ। हाँ कोई बात नहीं, हम आगे और करेंगे ना प्रैक्टिस, जब आप बताना उसका नाम, कितना अमाउंट है, एग्जैक्टली सब। थैंक यू फॉर क्रीम कलर यल शेप सोफा सेट, बिकॉज जब से ये घर पर आया है सब लोग इसकी भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। जो भी आता है इस पर बैठकर फुल्ली इंजॉय करता है। वो रामदेव स्टेशनरी शॉप है ना, उसके आगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर आप नानकरमगुड़ा से आ रहे हो और आपको रामदेव स्टेशनरी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा ना, तो रामदेव स्टेशनरी आगे हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल एंड स्पंजी सोफा सेट। जब भी वीकली मीटिंग्स होती है या गेट टुगेदर होते हैं, सब लोग इस पर बैठकर फुल्ली इंजॉय करते हैं और मजे लेते हैं। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सोफा सेट, because every month जब जब कोई आपके पास एवरी मंथ, जैसा कि वाईफाई, वाईफाई का बिल तो साल में एक बार आता है, कोई आप तक के पास न्यूज़पेपर वाले आते हैं बिल लेने के लिए, या फिर टीवी का या किसी और चीज का बिल लेने के लिए आते हैं, तो आप उनको वहां पर बिठाते हो, तो वहां पर बैठकर वो लोग लिख दीजिए नाम उनका, जैसे मैंने गैस वाले भैया लिख दिया, क्योंकि एवरी मंथ लेकर आते हैं वो। तो आपका देखिए, आपके एवरी मंथ कौन आते हैं, लेकर आते हैं और सोफे पर बैठकर
पानी पीकर जाते हैं और बोलते हैं बहुत ही अच्छा और रिलैक्सेशन होता है जब भी मैं सोफे पर बैठता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ब्यूटीफुल आरामदायक सोफा बिकॉज जब भी घर में बर्थडे पार्टी साल में एक बार होती है तो सब लोग सोफे पर बैठकर, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर अभी नहीं आ रहा है तो समझिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे 3:30 मतलब कि 12 के बाद ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी जा सकते हैं और एक बार देखकर। सोफे पर बैठकर सब लोग केक खाते हैं और सब लोग सोफे पर बैठकर अपना डिनर भी करते हैं, फुल्ली सेलिब्रेट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर thank you so much for my lovely and luxurious beautiful sofa. Thank you, thank you, thank you. अब नीचे सोफा ड्रॉ कीजिए, जैसे कि एल शेप का सोफा है, उसके नीचे 2 पैर है, सामने 2 चेयर है, उसका कलर लिख दीजिए क्रीम कलर, क्रीम कलर सोफा। साइड में लिख दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट लाइन लिखिए थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल आरामदायक स्पंजी वाला सोफा, बिकॉज आपकी वजह से मैं और सब लोग फुल्ली रिलैक्स फील करते हैं आप पर बैठकर। हाँ जी, तो ये हो गया आपके आज का असाइनमेंट। मटेरियल चीज इतने ही थे ना? हाँ, आपने अमृता जी थोड़ा सा नीचे ऊपर लाइए, जो हमारा असाइनमेंट था। हाँ, इतने ही है ना? हाँ, ओके। तो जी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है असाइनमेंट। अब आप देख लीजिए आराम से, आपको आइडिया तो मिल गया होगा ऊपर से कौन से चीज का कैसा कैसा लिखना है। बाद में आप इसमें और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसा सोफे के साथ कार, कार के साथ फ्रिज, सब कुछ इस तरह से आप लिख ले सकते हैं। ओके, डन। सबको समझ आ गया?
आज का असाइनमेंट एंड आज की क्लास कैसी लगी आपको? सब कुछ ओके है ना? यस, किसी को कुछ पूछना थैंक यू है सो या मच, क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम। मैम I एक enjoyed. एक चीज और बता Thank दो। you so much. Thank you so much. Thank you so much. जी जी, पूछिए। मैजिक बुक की असाइनमेंट कंसिस्टेंटली से कंप्लीट करनी है सारी, बीच में ब्रेक डाउन आ जाता है। नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। अगर ब्रेक लोगे फिर 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, हाँ फिर से हाँ आना। जी मैम, तो उसकी डिजायर कैसे लिखें? तो लिखिए, थैंक यू सो मच फॉर, मैंने मैजिक बुक का 28 डेज की प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट की है। 28 डेज पूरा कंप्लीट किया है इस तरह से। थैंक यू सर। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो ग्रुप ओपन है, आप उसमें फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको जो भी देना है। एंड वहाँ पे असाइनमेंट भी आएंगे रोज। अमृता जी बहुत अच्छे से लिख कर डाल रहे हैं, प्लीज आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, आज शायद लेट मिलेगी, नाइट तक मिलेगी, बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। मेरा शाम में भी एक है राइजिंग स्टार में 1 आवर का, घर के लिए करा रही हूँ स्पेशली, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 तक। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। यस अमृता जी, यहाँ पे आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं नहीं, नो सभा जी, नथिंग। नो ना? हाँ, ये बंद कर दीजिए, मैं यहाँ पे मीटिंग बंद अप करती हूँ। थैंक यू सो ओके, मच एवरीवन फॉर ब्यूटीफुल क्लास। थैंक यू सो मच और योर थैंक यू कोऑर्डिनेशन सो मच। अमृता। थैंक